So today we will study about functions. Let us revisit through some of the facts and concepts which we have studied in the earlier classes. So first one, number systems and inequality. Number systems and inequality. Within number system, we have natural numbers, so natural number is set of all counting number. Example like 1, 2, 3 up to infinity. So natural number is set of all counting numbers and is denoted by n. Second, whole number. So whole number is a set of all counting number including 0. So 0 and all counting number 1, 2, 3, 4 to infinity. This is known as whole number, and whole number is denoted by W. Third, integers. So integer is set of counting number 1, 2, 3, 4 to infinity, including 0, including negative counting number -1, -2, -3 up to infinity is known as integer. So integer is basically set of all counting number, 0 and all negative counting number, and is denoted by I, or sometimes it is denoted by Z. So in integers we have three parts. We have all positive numbers 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity, all negative numbers -1, -2, -3 and 0. 0 is neither positive nor negative integer. So if someone says positive integers, so he is talking about 1, 2, 3, 4, only this set. If he is talking about negative integers, means only from -infinity to -4, -3, -2, -1, only this set. If he is talking about non-positive integers, so from this complete set, remove the positive integers, remaining will be non-positive integers. So from -infinity to -3, -2, -1, including 0. Similarly, non-negative integers. So from this complete set, remove all negative integers, remaining will be non-negative integers. So 0, 1, 2, 3, like that up to infinity. Fourth one is rational number. So any number of the form p by q, any number of the form p by q where p and q are integers, and q not equal to 0. So any number of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is said to be rational numbers. Example देखते हैं, 5 by 3, 9 by 4, 7 by 2. These all are rational numbers. Next, irrational numbers. So all real number which are not rational number, all real number which are not rational, which are not rational number are known as irrational number. Example देखते हैं, pi, √2, √7,
E, etc. So these all are irrational numbers. Next, last, real number. So real number is set of all rational and irrational numbers. So set of all rational number and irrational number is known as real number. So कोई भी नंबर अगर वो आइदर रेशनल है या फिर इरेशनल है तो वो रियल नंबर भी होगा. रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं एंड इरेशनल नंबर को Q कंप्लीमेंट से, एंड रियल नंबर को हम R से डिनोट करेंगे. ठीक है. सो रियल नंबर एक कंटिन्यूअस वैल्यू होगा जिसको अगर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक शुरू होगी. बीच में कहीं 0, 1, 2, 3, -1, -2, 1.5. सो सारे जितने भी नंबर्स होंगे इस लाइन पे वो सारे रियल नंबर्स होंगे, जिसको R से डिनोट करते हैं. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम्स. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के बारे में. लेकिन इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ की अच्छी समझ होनी चाहिए और वो है इंटरवल. पहले डिफिनीशन देखते हैं. द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between any two real number is known as interval. सो डिफिनीशन को समझते हैं क्या बोल रहा है. द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज नोन एज इंटरवल. सो कोई भी दो रियल नंबर दिया हुआ है उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे एक इंटरवल का पार्ट होंगे. जैसे अगर सिंपल भाषा में समझे तो जैसे लंच इंटरवल होता है, तो लंच इंटरवल क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर टाइम से किसी दूसरे पार्टिकुलर टाइम तक इसके बीच के जितने भी टाइम होते हैं वो लंच इंटरवल होते हैं. सो सिमिलरली इन मैथमेटिक्स इंटरवल मीन्स किसी एक रियल नंबर से लेके दूसरे रियल नंबर तक के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे इंटरवल्स के बीच अंतर्गत आते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई बोलता है कि दो रियल नंबर है 5 और 7. सो इनके बीच में जो भी रियल नंबर्स आएंगे वो एक इंटरवल फॉर्म करेंगे बिटवीन 5 to 7. अब हो सकता है कि ये जो बाउंड्री पॉइंट है 5 and 7 ये इंक्लूडेड हो उस इंटरवल में या फिर एक्सक्लूडेड हो. तो अगर ये इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है इसके बेसिस पे इंटरवल को डिवाइड किया गया. और फर्स्ट है क्लोज्ड इंटरवल. क्लोज्ड इंटरवल मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड है. फॉर एग्जाम्पल 5 है और 7 है तो इनके बीच का जो नंबर है वो तो इस इंटरवल में है ही, साथ में जो 5 है ये भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड है और 7 है ये भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड है. और जब भी क्लोज्ड इंटरवल को हमें डिनोट करना होता है रियल लाइन पे तो हम उसे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स ये जो बाउंड्री पॉइंट है 5 and 7 ये भी उस इंटरवल में इंक्लूडेड है. एंड इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज अगर ये कोई रियल लाइन है x तो x बिलोंग्स टू 5 to 7. सो क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं. इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 5 and 7 ये भी इंटरवल में इंक्लूडेड है. सिमिलरली अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें 9, 11. सो अगर ये क्लोज्ड इंटरवल फॉर्म कर रहा है 9 to 11, अगर ऐसा है x बिलोंगिंग टू 9 to 11 तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे.
ये सारे नंबर्स इस इंटरवल में आएंगे। नेक्स्ट इसमें जो है ओपन इंटरवल, सो ओपन इंटरवल मीन्स जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 है 7 है, सो अगर ये ओपन इंटरवल है मीन्स ये जो बाउंड्री पॉइंट है इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे और इसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इनके बीच के जो भी रियल नंबर्स होंगे वो सिर्फ इस इंटरवल में होंगे। एंड इसको डिनोट करते हैं, सपोज अगर ये रियल लाइन x है तो x की सारी वैल्यू जो कि बिलोंग्स टू इंटरवल 5 to 7। सो यूजिंग दिस ब्रैकेट वी रिप्रेजेंट ओपन इंटरवल। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स, अगर सपोज ऐसा होता है x बिलोंगिंग टू 9 to 11, सो यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो इसको रियल लाइन पे डिनोट करने के लिए ये 9 ये 11 और इनके बीच के सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। फाइन। नेक्स्ट इसमें थर्ड टाइप जो है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब यह है कि वो जो दो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उसमें एक पे ओपन होगा और एक पे क्लोज्ड होगा। मीन्स एक बाउंड्री पॉइंट उस इंटरवल में इंक्लूडेड होगा और दूसरा बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा। एग्जांपल से देखते हैं, सपोज ये 5 है ये 7 है, अगर 5 इंक्लूडेड है तो 5 इंक्लूडेड है मीन्स यहाँ पे क्लोज्ड होगा, और अगर 7 एक्सक्लूडेड है तो यहाँ पे ओपन होगा। तो अगर एक बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है और दूसरा बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूडेड है तो ऐसे को सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। इनके बीच के सारे रियल नंबर्स उस इंटरवल में, तो इसको डिनोट करते हैं एक्स बिलोंगिंग टू, जहां भी क्लोज्ड बाउंड्री है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से 5 अप टू वेयर 7 तक। यहाँ पे ओपन सर्कल है मीन्स ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ओपन स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7 11। अगर ऐसा है मतलब 7 पे ओपन है तो इसको डिनोट करेंगे x बिलोंग्स टू 7 पे ओपन है मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, 11 पे क्लोज्ड है मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो हमने देखा कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल बेसिकली किसी भी दो रियल नंबर के बीच में जो भी रियल नंबर्स होते हैं उसको इंटरवल बोलते हैं। अब हो सकता है कि जो बाउंड्री पॉइंट है उस इंटरवल में इंक्लूडेड हो या फिर इंक्लूडेड नहीं हो, तो उसके बेसिस पे इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया कि अगर वो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है तो वो क्लोज्ड इंटरवल होगा, अगर वो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल होगा, और अगर एक बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड है और दूसरा एक्सक्लूडेड है तो उसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं इस पे। अगर डिनोट करना हो x बिलोंगिंग टू 9 to 50, वेरी सिंपल, ये 9 होगा ये 15 होगा, 9 पे ओपन होगा और 15 पे क्लोज्ड होगा, इनके बीच के सारे नंबर्स इसमें होंगे। ठीक है, ये x अपना रियल लाइन है। दूसरा देखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ to 5, ये अपना रियल लाइन है x, -∞ इधर होगा कहीं -∞, एंड 5 पे स्मॉल ब्रैकेट है मीन्स ओपन, और बाकी इधर के सारे वैल्यू। हाँ, नोट वन थिंग कि जब भी -∞ होगा या इन्फिनिटी होगा तो वहां पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि हम कभी भी -∞ या इन्फिनिटी को रीच नहीं कर सकते, सो वहां पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा। नेक्स्ट, अगर ऐसा डिनोट करना हो x बिलोंगिंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी, सो ये अपना x है, यहाँ पे कहीं -5 होगा, -5 पे क्लोज्ड है तो डार्क सर्कल
अप टू इन्फिनिटी, कंप्लीट रियल लाइन। फाइन। नेक्स्ट इसमें अगर आता है ऐसे रिप्रेजेंट करने, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 5 to 7। सो ऐसा है, यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये और ये दोनों में से कोई भी, तो इसको डिनोट करना हो तो सबसे पहले इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1, 0 पे ओपन, 1 पे ओपन, इनके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो x बिलोंग्स टू 0 to 1 ये रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली 5 to 7 रिप्रेजेंट करना हो तो 5 कहीं यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, दोनों पे ओपन है, 5 and 7 दोनों पे ओपन सर्कल। सो ये हो गया x बिलोंगिंग्स टू 0 to 1 यूनियन 5 to 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x बिलोंगिंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 7 to 9। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये x रियल लाइन है, -∞ to 0, सो 0 यहाँ होगा, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, मीन्स क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड डार्क सर्कल होगा, इसके पहले का सारा नंबर इस इंटरवल में -∞ से लेकर -∞ से लेकर 0 तक, यूनियन 7 से 9 तक। तो यहाँ कहीं अगर 7 होगा, यहाँ 9 होगा, तो दोनों पे क्लोज्ड है यूनियन 7। फाइन। सो इंटरवल को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो वहाँ पे ओपन होगा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो वहाँ पे क्लोज्ड होगा, और -∞ या इन्फिनिटी पे हमेशा क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, -∞ या इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होगा। ठीक है, इसमें और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज इसको रिप्रेजेंट करना हो, x बिलोंगिंग टू 5 to 7 इंटरसेक्शन 6 to 7। सो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है सिर्फ वही इस कंप्लीट सेट में आएगा। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, पहले इसको अगर रिप्रेजेंट करके देखें हम, तो ये क्या है, 5 to 7, 5 7 दोनों पे ओपन, ये है। और इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 6 to 7, मतलब यहाँ पे कहीं 6 होगा, 6 पे ओपन, ये वाला ये सेट आएगा। तो अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है वही पार्ट उस सेट में आएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, ये वाला। तो फाइनली जो अपना इसका अगर नंबर सिस्टम पे नंबर लाइन पे अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो फाइनली अपना ये होगा कि 6 होगा, 7 होगा, 6 पे ओपन, 7 पे ओपन, एंड ये लाइन। सपोज अगर ऐसा हो, x बिलोंग्स टू -5 to 7 यूनियन इंटरसेक्शन 3 to 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ कहीं -5 होगा, ये 7 होगा, -5 पे ओपन है, 7 पे क्लोज्ड है, ये हो गया -5 to 7। नेक्स्ट इसको ड्रॉ करेंगे 3 to 5, 3 कहीं इधर होगा, 5 कहीं यहाँ होगा, दोनों पे क्लोज्ड है, 3 5, और ये वाला इंटरवल आएगा। सो पहला वाला जो था यहाँ से यहाँ तक था, ये सेट -5 to 7, 3 to 5 यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है ये वाला, सिर्फ यही फाइनली आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन पार्ट हो। सो फाइनली ये होगा 3 to 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर ऐसा हो, -9 to 4 यूनियन 3 to 10। तो सबसे पहले इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं यहाँ होगा -9, ये 4, दोनों पे क्लोज्ड है, सो ये हो गया -9 to 4। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3 10, दोनों पे क्लोज्ड है, सो 3 10,
सो ये वाला जो सेट होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। सो जो दोनों में कॉमन है फिर से वो, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन है। सो जो दोनों में कॉमन होगा सिर्फ वही इस पूरे कंप्लीट सेट में आएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन। 3 to 4 यहाँ भी है, यहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है। सो जो दोनों में कॉमन है वो फाइनली आएगा और ये हो जाएगा 3 to 4। फाइन। सो ये हमने इंटरवल का बेसिक कंसेप्ट देख लिया। अब इसके बाद हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। इनइक्वालिटी कुछ फैक्ट्स देखते हैं पहले। a ग्रेटर देन b, दिस मीन्स a इज ग्रेटर देन b। सिमिलरली अगर ये साइन है a लेस देन b, मीन्स a इज लेस देन b। अगर ऐसा है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मतलब है कि आइदर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b। मीन्स इसमें से अगर कोई भी एक केस सेटिस्फाई होता है, मीन्स आइदर a ग्रेटर देन b है या फिर a इक्वल टू b है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है कि 7 ग्रेटर देन 5 होता है, ये केस ट्रू है, मीन्स ये भी केस ट्रू है। सपोज अगर ऐसा होता है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है कि 5 इक्वल टू 5 होता है, ये ट्रू है, मीन्स ये भी ट्रू है। ठीक है। सिमिलरली अगर a लेस देन इक्वल टू b होता तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता कि आइदर a लेस देन b होता या फिर a इक्वल टू b होता। फाइन। नेक्स्ट, सपोज अगर a ग्रेटर देन b दिया है, इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सपोज हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर k से मल्टीप्लाई किए k a ग्रेटर देन k b, अगर ये इनइक्वालिटी का साइन सेम रह गया, मीन्स k एक पॉजिटिव नंबर है। इफ k इज ग्रेटर देन 0, मीन्स अगर k ग्रेटर देन 0 है तो ये इस इनइक्वालिटी में k से मल्टीप्लाई करने पे साइन सेम रहेगा। एल्स अगर k निगेटिव होगा, इफ k लेस देन 0 है, ठीक है, अगर k निगेटिव नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ये रिवर्स हो जाएगा, मीन्स k a लेस देन k b हो जाएगा। ठीक है। इसको अच्छे से देखते हैं। a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, अगर इसमें पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर k है, तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगा, मीन्स के ए अगर k ग्रेटर देन 0 है तो के ए ग्रेटर देन के बी। अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स अगर k निगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने का जो जनरल तरीका होता है उसको सीखते हैं साइन स्कीम से, या वे भी कर्व मेथड जो होता है उसको सीखते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। वैसे इनइक्वालिटी तो काफ़ी लंबी चैप्टर है, बट उतना हम सब कुछ फंक्शंस में नहीं पढ़ सकते, ये अलग से चैप्टर है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सो आई विल टेल अबाउट साइन स्कीम की कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले कोई भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल x माइनस 4 x माइनस 9 लेस देन 0, ये हमें सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, सबसे पहले अपना काम होगा कि कोई भी इनइक्वालिटी दी हुई हो, उनके जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। सो यहाँ पे ये कहाँ इसका फैक्टर क्या है, 0 x इक्वल टू 4 पे हो रहा है, ये कहाँ पे 0 है x इक्वल टू 9 पे। सो 4 और 9 को रिप्रेजेंट करें। उसके बाद यहाँ पे साइन देखें, अगर साइन के साथ साथ यहाँ पे अगर इक्वल टू है, मीन्स लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर इक्वल टू है तो यहाँ पे डार्क सर्किल कर दें, अगर इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्किल कर दें। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, सो 4 और 9 पे ओपन सर्किल कर दें, मीन्स ये अपने आंसर में कभी भी इंक्लूडेड नहीं हुआ, क्योंकि जब 4 रखेंगे तो ये 0 आएगा और 0 लेस देन 0 रॉन्ग है। सो ओपन सर्कल कर दे जहां पे भी ये 0 है। उसके बाद इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू ले लो, सपोज एग्जांपल 10 रखने पे इसमें साइन चेक करो। 10 रखने पे क्या आएगा, 10 माइनस 4 ये 6 आएगा, और ये 10 माइनस 9 क्या आएगा 1, तो 6 इंटू 1 6 पॉजिटिव नंबर है, मीन्स इस साइड में जो अपना साइन होगा 9 के बाद कोई भी नंबर इसमें रखेंगे तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव।
सिमिलरली 4 एंड 9 के बीच में कोई भी एक नंबर ले ले, जैसे 5 है तो 5 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव नंबर, 5 माइनस 9 माइनस 4, तो 1 इंटू माइनस 4 निगेटिव नंबर, मीन्स ये यहाँ पे जो साइन होगा वो निगेटिव होगा। सिमिलरली 4 के पहले का कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 0, अगर इसमें 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 9, तो माइनस 4 इंटू माइनस 9 प्लस 36, सो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होगा। सो ये अपना साइन स्कीम ड्रॉ हो गया। उसके बाद हमें सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे लेस देन है, मीन्स जहां भी अपने साइन स्कीम में निगेटिव साइन है वो इंटरवल इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे साइन निगेटिव कहाँ पे, 4 पे और 4 से 9 के इंटरवल में। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी का, x बिलोंग्स टू 4 पे ओपन है, 9 पे ओपन है। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जब कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स जहां भी जीरो हो रहे हैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये 4 पे और 9 पे जीरो हो रहा है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए। उसके बाद साइन को चेक करें कि क्या यहाँ पे इक्वल टू साइन है या नहीं। अगर इक्वल टू साइन है तो उन पॉइंट्स को डार्क सर्कल कर दे, या फिर ओपन, अगर ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो उसको ओपन सर्कल कर दे। उसके बाद हर एक इंटरवल में एक एक नंबर लें और उस नंबर पे उस जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसका साइन चेक करें। अगर वो साइन पॉजिटिव आता है तो उसको पॉजिटिव मार्क कर दें, अगर वो निगेटिव आता है तो निगेटिव मार्क कर दें। उसके बाद सॉल्यूशन लिखते वक्त अगर यहाँ पे लेस देन का साइन है तो जहां जहां भी निगेटिव इंटरवल है वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो जहां जहां भी पॉजिटिव साइन है इस नंबर लाइन पे वो सारे इंटरवल्स उसके सॉल्यूशंस होंगे। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। x माइनस 9 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स जहां जहां जीरो उसको रिप्रेजेंट करें, तो x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 3। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे ओपन सर्कल। उसके बाद इधर से कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे 10 10 ले लें, 10 रखने पे इसमें पॉजिटिव आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन। उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे 5 इसमें रखेंगे तो 5 रखने पे ये निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे निगेटिव। इधर कोई भी एक वैल्यू जैसे 0 ले ले, 0 रखने पे ये फिर से पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव। अब उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन है मीन्स जहां जहां भी प्लस है वो सारा इंटरवल। तो प्लस कहाँ पे है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, ये वाला इंटरवल दोनों पे ओपन है, यहाँ भी ओपन है, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन होता है। यूनियन दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 9 से इन्फिनिटी तक है, 9 पे ओपन है, इन्फिनिटी तक है। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बार बार हमें वैल्यू रख के चेक करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं कि x माइनस 9 x माइनस 3 अगर लेस देन 0 है, तो फिर से वही काम, सबसे पहले इसको नंबर, इसके फैक्टर्स जहाँ भी 0 हो रहे हैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, 9 पे एंड 3 पे। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन सर्कल। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। उन जितने भी x हैं उन सारे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। अगर वो निगेटिव आता है तो ये साइन जो होगा निगेटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे जो साइन होगा सबसे राइट मोस्ट वाला जो होगा इंटरवल वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे x क्या है, x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव नंबर आया तो सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट लेफ्ट में आओ, ये 9 है तो 9 वाला फैक्टर यहाँ से आ रहा है। इसका पावर चेक करो, अगर इसका पावर इवन है तो ये साइन जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर इसका पावर ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है तो ऑड है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आओ 3 पे, 3 यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो 3 पे पावर फिर से क्या है, ऑड है, तो फिर से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो साइन स्कीम इसका ड्रॉ हो गया। अब सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस देन है तो मीन्स जो नेगेटिव रीजन है, तो x बिलोंग्स टू 3 to 9। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x माइनस 4 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3
ग्रेटर देन 0। सपोज इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। 4 पे ये 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है और ये 3 पे 0 हो रहा है। ठीक है, तीनों लाइन को, तीनों फैक्टर्स जहाँ जहाँ 0 हो रहे हैं उसको नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखो साइन क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मीन्स ये सारे ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद साइन स्कीम इस पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस राइट मोस्ट का साइन देखने के लिए क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1। ठीक है, और यहाँ पे भी 1। सो 1 1 1 सारे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद 4 पे 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। इसका पावर क्या है, ऑड है, मीन्स ये साइन जो होगा चेंज हो जाएगा या माइनस। ये 3 है, 3 कहाँ आया, यहाँ से आया, तो 3 इसके पावर क्या है, ऑड है, तो ये भी साइन फिर से चेंज हो जाएगा। उसके बाद 2 2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसके पावर क्या है, इवन है, मीन्स साइन अब चेंज नहीं होगा, जो साइन था वही साइन यहाँ रह जाएगा। ठीक है, सो अब इसका अगर सॉल्यूशन लिखना है तो हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, मीन्स जहां जहां पॉजिटिव रीजन है वो सारा। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 पे ओपन है यूनियन, फिर 2 से 3 तक, 2 पे ओपन है, 3 पे ओपन यूनियन, 4 से इन्फिनिटी तक, 4 से इन्फिनिटी। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन का। ठीक है, सो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए काफ़ी सिंपल सा तरीका है कि उस इनइक्वालिटी का साइन स्कीम ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट करो। सो साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जहाँ जहाँ वो फैक्टर्स 0 हो रहे हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, उसके बाद देखो कि क्या वो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। अगर इक्वलिटी का साइन है तो वहाँ पे डार्क सर्कल कर दो, अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो वहाँ पे ओपन सर्कल कर दो। ठीक है, उसके बाद सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन प्लस होगा या माइनस होगा साइन स्कीम ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करना है कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उन सारे को मल्टीप्लाई करो। अगर वो प्लस आता है तो प्लस साइन होगा, अगर वो माइनस आता है तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे जैसे देखो एक्स का सारा कोफिशिएंट 1 1 1, तो ये सारा मल्टीप्लाई होके प्लस आ गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में चलते जाओ, यहाँ पे 4 आया, 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके पावर में क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ पे 3 है, 3 के बाद 3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके पावर में भी क्या है, ऑड है, तो फिर से साइन चेंज हो गया, -2 प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आओ, 2 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर इवन है तो साइन एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद देख लो कि ग्रेटर देन का चाहिए सॉल्यूशन या लेस देन का। अगर ग्रेटर देन का सॉल्यूशन चाहिए तो जितने भी पॉजिटिव इंटरवल्स है वो सॉल्यूशन होगा, अगर लेस देन का चाहिए तो वो जितने भी नेगेटिव इंटरवल्स है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। x-2 x-9 होल स्क्वायर x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो 2 9 5, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसको डार्क सर्कल कर दो। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट वाले का साइन देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, एक्स का सारा कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद 9 9 कहाँ से आया, यहाँ से, इसका पावर क्या है, इवन है, तो साइन एज इट इज रह जाएगा यहाँ भी। उसके बाद यहाँ 5 5 पे क्या है, पावर ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 पे आओ, 2 यहाँ से आया, 2 पे पावर क्या है, ऑड है, तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, तो ग्रेटर के लिए मीन्स जितने भी पॉजिटिव रीजन्स है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ये रीजन 2 तक, 2 पे क्लोज्ड है, यूनियन 5 से 9 तक, दोनों पे क्लोज्ड है, 5 से 9 यूनियन 9 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसको ये देखो 9 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है, यहाँ भी है 9, यहाँ भी है 9, मीन्स 9 ऑलरेडी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो ये थोड़ा बेसिक्स है इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं।
बाकी इन डिटेल के लिए इनइक्वालिटी चैप्टर को रिवाइज करना होगा अच्छे से। सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।